शुरू करते हैं विद पेज नंबर 77। क्वेश्चन आ रहा है डिफाइन, पहला है रेट ऑफ रिएक्शन। लिखो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विथ चेंज इन टाइम। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विथ चेंज इन टाइम। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विथ चेंज इन टाइम। तो अगर ये कोई रिएक्शन है तो इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 1/x माइनस dA/dt 1/y dB/dt लिखो। और रेट की यूनिट क्या होती है? मोलैरिटी पर यूनिट टाइम। सेकेंड है व्हाट इज रेट कांस्टेंट। देखो इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन when concentration of all the reactant is 1 molar. It is defined as rate of reaction when concentration of all the reactant is 1 molar. इसकी यूनिट होती है मोलैरिटी 1 minus n time minus 1 where n is order. नेक्स्ट आ रहा है ऑर्डर। लिखो ऑर्डर इज पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। ऑर्डर इज पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म in the expression of rate law. Power of concentration term in the expression of rate law. In the expression of rate law. तुम लोग इस तरफ आ जाओ ना, बीच में आ जाओ, क्योंकि ये प्रोजेक्टर बंद किया हुआ, बच्चे जो कम है बीच में आ जाओ, सब खाली पड़ा है। उल्टा बीच में बैठा करो, रिफ्लेक्शन पड़ती है नहीं तो डेस्क की। नेक्स्ट आ रहा है मॉलिक्युलैरिटी। ये लिखो एक्स और वाई ऑर्डर है। नेक्स्ट आ रहा है मॉलिक्युलैरिटी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। Number of molecules of reactants which collide simultaneously, हल्की सी आवाज कम कर, which collide simultaneously to form product. Number of moles of reactant which collide simultaneously to form product. Which collide simultaneously to form product. For example, कि भाई यहाँ पे दो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं तो इसकी मॉलिक्युलैरिटी 2 है। ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है।
और क्या करें यार, स्किन गर्म हो जाती है एकदम। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। A reaction which proceed through many steps. A reaction which proceed through many steps is called complex reaction. A reaction which proceed through many steps is called complex reaction. लिखो, for complex reaction, slow step is the rate determining step. For complex reaction, slow step is the rate determining step. Slow step is the rate determining step. हाँ जी, elementary reaction. Elementary reaction. A reaction which is completed in one step. A reaction which is completed in one step is called elementary reaction. A reaction which is completed in one step is called elementary reaction. Stoichiometric coefficient is equal to order for these reactions. Stoichiometric coefficient is equal to order for these reactions. Stoichiometric coefficient is equal to order for these reactions. Half life. तो आप देखो, हर एक डेफिनेशन में एक लाइन एक्स्ट्रा फेंक देते हैं. दिस इज आर्ट ऑफ राइटिंग. जिस दिन आ गई तो उस दिन टॉप करना शुरू कर दोगे. कुछ फालतू नहीं लिखते, पर एक कंटेंट बढ़ाने के लिए बस एक पंच लाइन ऐड कर दे. कहीं यूनिट, कहीं फॉर्मूला, कहीं ये लिख दिया कि ऐसे में ऑर्डर इसके बराबर होता है, उसमें लिख दिया कि जी स्लो स्टेप डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. वन लाइन एक्स्ट्रा. शुरू से जेएसआरवी में कहता हूं अगर स्कोर करना है, जस्ट वन लाइन, बट इट हैज टू बी अ पंच लाइन, ए वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंट. वो एक माइंडसेट है, आदत पड़ जाए तो फिर यू स्टार्ट स्कोरिंग. हाफ लाइफ, टाइम टेकन फॉर half of the reactant to react. Time taken for half of the reactant to react. For zero order reaction and for first order reaction, half life is. For zero order reaction and for first order reaction, half life is. फॉर्मूला दे दो. इस तरह बैठो. हाँ बेटे बोल. नेक्स्ट आ रहा है जी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो देखो हाफ लाइफ भी दे रहे हैं तो फॉर्मूला चेप दिया. हमें तो आता ही है भाई, ये फॉर्मूला तो तुम्हें आता ही होगा जब एग्जाम देने जाओगे. लिखा हो ना, फिर सोच क्या रहे हो मन में, लिखो.
सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखो, ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, a second order reaction in which one of the reactant is taken in large excess, a second order reaction in which one of the reactant is taken in large excess so that it behave like a first order reaction, so that it behave like a first order reaction. For example, hydrolysis of ester. For example, acidic hydrolysis of ester. For example, acidic hydrolysis of ester. Arrhenius equation. देखो, it depict variation of rate constant with temperature. It depict variation of rate constant with temperature. अब इक्वेशन पूछिए तो उसके पैरामीटर भी एक्सप्लेन करो सारे. टेम्परेचर कोफिशिएंट. देखो, इट इज रेशियो ऑफ rate constant. It is ratio of rate constant at temperature T plus 10. It is ratio of rate constant at temperature T plus 10 and at temperature T. And at temperature T. तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट रेशियो है रेट कांस्टेंट की एट टेम्परेचर T प्लस 10 डिवाइड बाय एट टेम्परेचर T फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस. मैं ही लिख देता हूं.
temperature coefficient is between 2 to 3. एक्टिवेशन एनर्जी देखो, मिनिमम एक्सेस एनर्जी which reactants must possess, minimum excess energy which reactants must possess to cross energy barrier, which reactants must possess to cross energy barrier and form product, to cross energy barrier and form product. ये इसका सिंबल है, यूनिट जूल पर मोल. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स form at the top of high energy complex form at the top of energy hill diagram.
high energy complex form at the top of energy hill diagram. Form at the top of energy hill diagram. देखो, also called transition state. Also called transition state. इसको ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं. सेकंड क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट. दो कंडीशन है. नंबर वन लिखो, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स आर 1 मोलर. If concentration of all the reactants are 1 molar. लिखो. सेकंड कंडीशन है, if order of all the reactants are 0. If order of all the reactants are 0. नेक्स्ट आ रहा है ऑर्डर इक्वल टू मॉलिक्युलरिटी. कब ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी बराबर होते हैं? लिखो, नंबर वन, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्युलरिटी. फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्युलरिटी. ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्युलरिटी. सेकेंड, for multi-step reaction, order is equal to, for multi-step reaction order is equal to molecularity of slow step. Order is equal to molecularity of slow step. तो अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तो ऑर्डर मोलेक्युलरिटी बराबर होते हैं. अगर रिएक्शन मल्टी स्टेप है तो स्लो स्टेप की जो मोलेक्युलरिटी होती है वही क्या हो जाता है? ऑर्डर. नेक्स्ट आ रहा है रेट कांस्टेंट टू डिफरेंट टेम्परेचर पे बराबर कब होते हैं? लिखो, व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी इज 0. व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी इज 0. देखो,
अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 है तो रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर बिकम इक्वल. देखो नेक्स्ट, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बिकम फर्स्ट ऑर्डर. आप बताओ कब एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर में तब्दील हो जाता है? जब एक रिएक्टेंट एक्सेस में लेते हैं. लिखो लिखो व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस. When one of the reactant is taken in excess. When one of the reactant is taken in excess. When one of the reactant is taken in excess. तो आप देखोगे बहुत ही मजेदार पैकेज है. लॉट ऑफ थिंग्स कॉम्प्लीमेंट्री एक साथ रखी हुई हैं, अलग अलग चीजें आप एक साथ हैंडल कर रहे हो. 99% रीजनिंग क्वेश्चन कवर्ड है इसके अंदर, तो बहुत ब्यूटीफुल चीज है. इसकी अहमियत को समझो. नेक्स्ट आ रहा है वाई मॉलिक्युलरिटी मोर देन 3 इज अनकॉमन. एक साथ 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल टकरा जाएं उसकी संभावना कम है. देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलाइडिंग 3 or more molecules. Probability of colliding 3 or more molecules simultaneously. Probability of colliding 3 or more molecules simultaneously and effectively. टकराने से भी काम नहीं चलेगा, कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए. Probability of colliding 3 or more molecules simultaneously and effectively is very low. Is very low. फोर्थ क्वेश्चन पे पहले तो 3 कुत्ते बिल्लियां बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसका आंसर आपका टूटा फूटा आपको आता है. आप कभी भी इसका आंसर बच्चे सही से याद नहीं कर रहे. फोर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन. जेई नीट सीबीएसई सीयूटी सबके लिए इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द बेस्ट आंसर फॉर इट? टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन की स्पीड क्यों बढ़ती है? व्हाट इज द बेस्ट आंसर फॉर इट? कोलिजन वोलिजन लिख के आओगे नंबर नहीं मिलने. ओनली 1% 2% स्पीड इंक्रीजेस जस्ट बिकॉज इफेक्टिव कोलिजन, वो जो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ते हैं. तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ने का सबसे छोटा कारण है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन का बढ़ना. व्हाट इज द मेन रीजन? यही मैं आपसे कह रहा हूं. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. समहाउ स्कैटर्ड रह गया पैकेज के अंदर. शायद मेरी गलती है, अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाए, आपको अच्छे से लिखवा नहीं पाए. टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन की स्पीड क्यों बढ़ती है? आपका जवाब है क्योंकि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट की संख्या बढ़ती है. 300 केल्विन पे 50 ऐसे मॉलिक्यूल थे जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा थी. 310 पे 100 ऐसे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा है. लिखो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर number of reactant molecules
on increasing temperature, number of reactant molecules having energy, number of reactant molecules having energy equal to or more than activation energy, equal to or more than activation energy increases. Equal to or more than activation energy increases, due to which more reactant molecules are able to form product, due to which more reactant molecules are able to form product. ये नंबर 1 रीजन है। और अगर आप ये ग्राफ देकर आ गए तो हो सकता है एग्जामिनर बेहोश ही हो जाए, फिर उसके आसपास के लोग उसको पॉइंट डाल के उठाएंगे कि भैया ऐसा भी होता है, बच्चे पढ़ते भी हैं। ये ग्राफ देना जरूरी नहीं है, पर मैं क्योंकि इस टॉपिक को दोबारा समझाना चाह रहा हूं तो मैं ग्राफ ले रहा हूं। आप मत लिखो, कुछ याद करने की कोशिश करो। ये पोटेंशियल एनर्जी हिल डायग्राम नहीं है नशेड़ियों। यहां पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यहां पे टेम्परेचर है, ये कट ऑफ है, दिस इज कट ऑफ, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। केवल वही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट फॉर्म कर पाएंगे जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या उससे ज्यादा है। तो फिर जब टेम्परेचर 300 केल्विन है, एरिया अंडर द कर्व, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं एरिया अंडर द कर्व, ये है, इसे कहते हैं एरिया अंडर द कर्व। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ, सुनना जरा, एक्टिवेटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। हिंदी बोलो, ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा है। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है? ये ग्राफ है एट 310 केल्विन, क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है? बोलो। एक्टिवेशन एनर्जी तो अभी भी आपकी वही है। ये आपकी कट ऑफ है एक्टिवेशन एनर्जी, देखो ये अभी भी वही है, लेकिन अब एरिया अंडर द कर्व, वो सारे मॉलिक्यूल जो इस तरफ है, थोड़ा ग्राफ छोटा करता हूं, ज्यादा हो गया, इतना भी नहीं हो जाता। ये देखो, नाउ दिस इज द एरिया अंडर द कर्व। हरे वाला ग्राफ देखो, हरे वाले ग्राफ में ये वो सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी, दिस इज एरिया अंडर द कर्व, हरे वाला। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है या उसके बराबर है। यही वो रिएक्टेंट है जो क्या फॉर्म कर सकते हैं? प्रोडक्ट। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन की स्पीड क्यों बढ़ती है? क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ती है जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है टू फॉर्म प्रोडक्ट। बनाओ, वहां जगह नहीं है तो आगे पीछे बहुत खाली पेज है, वहीं है तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे पीछे बनाओ।
फिफ्थ आ रहा है वाई एडिशन ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो कैटलिस्ट डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, catalyst decrease activation energy, hence increase the rate of reaction. Catalyst decrease activation energy, hence increase the rate of reaction. Hence increase the rate of reaction. एग्जाम में इतना ही लिख के आना है, लाइन खींचो नोट लिखो, ज्ञान दे रहा हूं। कैटलिस्ट डालने पे हाँ क्या क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, रेट कांस्टेंट, रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, रेट कांस्टेंट बढ़ता है, डेल्टा जी सेम रहता है, इक्विलिब्रियम स्टेट सेम रहती है। जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है उतनी ही बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ती है। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो तो कैटलिस्ट डालने पे जितना फॉरवर्ड की स्पीड बढ़ती है उतनी बैकवर्ड की भी स्पीड बढ़ती है, ये उतारो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहता है, डेल्टा जी सेम रहता है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे कोई असर नहीं पड़ता, वो भी सेम रहती है। एक्टिवेशन एनर्जी घटती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, बस। सिक्स क्वेश्चन है, आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ ए घट रही है फ्रॉम 0.5 मोलर टू 0.4 मोलर इन 10 मिनट, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम न्यूमेरिकल शुरू करने जा रहे हैं, थ्योरी हो गई। ओके तो पहला काम क्या रहता है, हम रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख लें उनकी शक्ल देख के जिनके बारे में सवाल है। सवाल ए के बारे में, और सवाल बी के बारे में। तो फर्स्ट पार्ट है रेट ऑफ रिएक्शन, तुम्हें ए का डाटा दिया हुआ है, ए की फाइनल कंसंट्रेशन है 0.4, इनिशियल है 0.5 और टाइम है 10 मिनट्स। प्लस में आंसर आ जाएगा। यूनिट हो जाएगी मोलैरिटी पर मिनट। आल्सो रेट ऑफ रिएक्शन है 1/3 माइनस अंदर ले गया मैं डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, जिसे क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन।
ऐसे क्वेश्चनों में पहला काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन उनकी शक्ल देख के लिख लो जिनके बारे में सवाल है। ए का डाटा दिया हुआ है, उससे रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज 1/3 ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। सेवंथ आ रहा है आपको, एक रेट लॉ दिया हुआ है, आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट अगर प्रेशर एटीएम में है और टाइम मिनट में है। और मैं हमेशा बोलता हूं व्हाट इज रेट। रेट क्या है? चेंज ऑफ समथिंग ओवर चेंज इन टाइम। यहां पे प्रेशर हो गया ना, बोलो चेंज ऑफ प्रेशर ओवर चेंज इन टाइम। ऊपर प्रेशर, ऊपर एटीएम, नीचे मिनट। पर जहां तक रेट कांस्टेंट का सवाल है वो हो जाएगा प्रेशर 1 माइनस एन, टाइम -1, ऑर्डर बोलो, ऑर्डर हाफ है, टाइम मिनट में लिखो। रेट के बारे में हमेशा सोचा करो रेट होता क्या है। समथिंग इज चेंजिंग विद टाइम, दैट समथिंग आइदर कैन बी कंसंट्रेशन और प्रेशर। तीसरा तो है ही नहीं यहाँ पे। हम्म अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, सेकेंड ऑर्डर फॉर बी, राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड में सबसे ज्यादा चांस होते हैं ये वर्ड आने के, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। एंड देन हाउ द रेट इज अफेक्टेड व्हेन बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। इस रिएक्शन की प्रॉब्लम ये है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि इसमें रिएक्शन नहीं दे रखा। जब तक मैं रिएक्शन नहीं लिखूंगा मैं कुछ आगे बढ़ नहीं सकता, खासकर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। क्योंकि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या है, आपको बार बार समझाते हैं कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन दो बार लिखो। रेट ऑफ रिएक्शन दो बार लिखो। एक बार रेट लॉ से लिखो, उसके लिए आपको ऑर्डर चाहिए, दे रखा है, बोलो ए का ऑर्डर कितना है, बी का 2। दूसरी बार लिखो रेट ऑफ रिएक्शन, अब की बार एवरेज रेट मेथड से लिखो, 1/x माइनस डी ए बाय डी टी। 1/y भी ले सकते हैं, कोई एक ले लो चल जाएगा। अब आप इन दोनों को इकट्ठा लिख दो, इसी को डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहते हैं। सेकंड पार्ट बोलो क्वेश्चन का। ए और बी दोनों को डबल किया, तो मैंने इसमें आपको ट्रेनिंग दी थी, ये क्वेश्चन डायरेक्ट मत करके आ जाना। पहले तो ये लिखा ओल्ड रेट, नया रेट डैश, नई कंसंट्रेशन ए की, नई कंसंट्रेशन बी की, और नई कंसंट्रेशन कितनी है ए की, ट्वाइस ऑफ ओल्ड। ये डैश है, 1 नहीं है। बी की नई कंसंट्रेशन इज ट्वाइस। तो और नया रेट कितना है दिया हुआ है ना कुछ, हाउ रेट इज, अच्छा रेट तो निकालना ही है ना। तो नया रेट क्या हो जाएगा, इट इज के इंटू 2a 2a एंड 2b का स्क्वायर। बोर्ड में ऐसे ही काम करना है। ये कौन है, ओल्ड रेट, लिखो।
तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से पहले देख के जाने की चीज है। आसान होने के बावजूद भी इसमें पिटफॉल है, बच्चे गिरते हैं गड्ढों में, तो मत गिरो। जल्दी लिखो, खत्म नहीं हो पाएगा नहीं तो। अगला बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है और उसका रेट कांस्टेंट दे रखा है आपको, लिखा हुआ है इनिशियल कंसंट्रेशन ए और बी की आपको दे रखी है। फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ए इज रिड्यूस टू 0.6। लिखो इफ, एक लाइन मिस रह गई है, इफ ऑर्डर with respect to A is 1 and B is 2. If order with respect to A is 1 and B is 2. आपको याद है इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? आपको बनानी है पहले टेबल, इनिशियल, रिएक्टेड, फाइनल। क्या गिवन है? ए का इनिशियल अमाउंट गिवन है 0.1 मोलर, बी का इनिशियल अमाउंट गिवन है 0.2 मोलर, बी का फाइनल अमाउंट गिवन है ए का 0.6 मोलर। अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो रेट लॉ आपके पास है, क्योंकि ए का ऑर्डर 1 है और बी का ऑर्डर 2 है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, तो अगर आपको रेट निकालना है तो आपको ए और बी की फाइनल कंसंट्रेशन चाहिए। उसमें से भी ए की फाइनल कंसंट्रेशन तुम्हारे पास है, क्या रह गया? बी। उसको निकालने का तरीका क्या था? ए कितना लिया था, कितना रह गया, कितना रेट कर गया? 0.04। सोशियोमेट्री 2 1 जितना उसका आधा, जितना ए रेट करता है उसका आधा बी रेट करता है। बी शुरू में कितना था? बी शुरू में कितना था? 0.2 मोलर। बी शुरू में कितना था? 0.2 मोलर। कितना रेट कर गया?
0.02 कितना रह गया, 0.18 मोलर, 0.18 मोलर। ये है आपकी फाइनल कंसंट्रेशन जो आपको पुट करनी है। देखो क्वेश्चन ठीक कर लो, जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो 0.06 है। अगला क्वेश्चन है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आपको निकालना है अगर रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है। रेट कांस्टेंट की यूनिट है मोलैरिटी पर सेकेंड। शिक्षा, ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, तो रेट कांस्टेंट आपको गिवन है। इसको देखकर हम समझते हैं कि इसका ऑर्डर जीरो है, तो इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखेंगे। तो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के बराबर ही आ जाएगा। फिर हमें निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, इक्वेशन देखो, 1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा T, 1/3 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। यहां से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। अगला आ रहा है 11th क्वेश्चन। आपको एक रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया हुआ है। पहला है रेट लॉ लिखो। मल्टी स्टेप रिएक्शन में स्लो स्टेप को देखकर रेट लिखा जाता है, और स्लो स्टेप के रिएक्टेंट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड आयोडाइड। व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन?
विच स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग? फर्स्ट, क्योंकि वो स्लो स्टेप है। ट्वेल्थ क्वेश्चन आ रहा है, ये इनिशियल रेट मेथड का क्वेश्चन है। एक रिएक्शन 3 बार करवाया गया, अलग अलग ए और बी का इनिशियल अमाउंट लेके फाइंड द रेट लॉ। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक रेट लॉ अज्यूम कर लेते हैं। अब कोई दो एक्सपेरिमेंट जिनमें ए की वैल्यू सेम है, 1 एंड 2, तो एक्सपेरिमेंट 1 में ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और रेट की वैल्यू। एक्सपेरिमेंट 2 में ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और रेट की वैल्यू। तो यहां से y इज इक्वल टू 0। कोई दो एक्सपेरिमेंट जिनमें बी की वैल्यू सेम है, x इज इक्वल टू 2। फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, व्हाट इज रेट लॉ? बी पार्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट? एक्सपेरिमेंट फर्स्ट पकड़ लो। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में रेट की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो मोलैरिटी -1, टाइम की यूनिट सेकंड में दे रखी है वहां पे। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि बच्चे यूनिट लिखते ही नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, आपको बता रखा है कि अमोनिया की कंसंट्रेशन इनिशियली 5 मोलर थी जो घट के 3 रह गई 100 सेकंड में, हमें रेट कांस्टेंट निकालना है और टी हाफ। आईआरई, जीरो ऑर्डर की आईआरई ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। ए कौन होता है? रिएक्टेंट। वो कौन है यहाँ पे? अमोनिया। ये होता है फाइनल कंसंट्रेशन। ध्यान लगाओ, अब तक सिंबल नहीं आते तो नॉट लग गया इनिशियल, फाइनल कंसंट्रेशन 3 मोलर, ठीक है। टाइम 100 सेकेंड, इनिशियल 5, के की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻⁻2 यूनिट। यही नंबर कटने हैं, ध्यान लगाओ, यूनिट। रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो वही यूनिट होगी जो रेट की होती है, मोलैरिटी पर सेकेंड। और निकालना है हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर इज ए नॉट बाय 2K। सेकेंड में आंसर आ जाएगा। नहीं करना चाहिए, जीरो ऑर्डर बोल दिया ना। आयारी, फोर्टीन आ रहा है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रूव दैट 99% रिएक्शन इज ट्वाइस ऑफ टी 90%। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की आईआरई है। टी 90% का क्या मतलब है? अमाउंट रिएक्टेड इज 90/100 ऑफ ए। हंड्रेड ए, 90 ए, 10 ए, ऊपर 100 ए से कट गया 10, लॉग 10 1। चेक कर लो। टी 99% का मतलब है अमाउंट रिएक्टेड इज 99/100 ऑफ ए। हंड्रेड ए, नीचे ए से कट गया 100 100 10 लॉग 2 2 लॉग 10 1।
अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 100 मिनट फॉर 25% डिकम्पोजिशन, टी हाफ क्या होगा? 25% डिकम्पोज कर गया मतलब 25% रिएक्ट कर गया। डिकम्पोजिशन इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन। प्लानिंग, फर्स्ट ऑर्डर की आईआरई लगा के पहले के निकाल लो, के से टी हाफ निकल जाएगा। So X amount reacted is 25 by 100 of A. बोलो, log 10 बाय log क्या बचेगा? 4/3 log 4 माइनस log 3। log 4 की वैल्यू किसी को याद है क्या? नहीं याद तो उल्लू के पट्टे हो, फिर करो याद। 0.3010 इंटू 2 0.6020। कब तेज बनोगे यार? log 3 log 2 log 5 log 10 log 1, 5 तो log बोले याद करने के लिए। log 3 बोलो 0.4770। सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा यूनिट हो जाएगी पर मिनट। फिर निकालेंगे टी हाफ। यहां से के निकाल के यहां रख देना, मिनट में आंसर आ जाएगा। यहां तक लिखो, ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।